Hello students, welcome to Commerce Solutions. So today we will discuss some concept of accounting and some convention of accounting. Basically, in previous videos we are discussed the basic of accounting. Today we will discuss some concept and convention of accounting. So let's start. So today we will start with the cost concept. So what is cost concept? Cost concept means we should record all our transaction, all our asset, liability in historical cost. Okay, historical cost means the purchase cost, the original cost, the invoice cost. Okay, so let's discuss in detail in our video. So cost concept. By this concept, the value of an asset is to be determined on the basis of historical cost. Historical cost means the invoice cost. Other hand, in other words, acquisition cost. Acquisition cost means purchase cost. Although there are various measurement bases, accountants traditionally prefer this concept in the interest of objectivity. When a machine is acquired by paying 5 lakh, following cost concept, the value of machine is taken as 5 lakh. ଯଦି ଗୋଟେ machine 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ cost concept follow କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା. It is highly objective and free from all biasness. Other measurement bases are not so objective. ଆଉ କିଛି measurement ମଧ୍ୟ ଅଛି. ତାହେଲେ cost concept ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉ cost ରେ asset କୁ କିଣୁଛେ ତାକୁ ଆମେ historical cost କହୁଛେ ଆଉ ସେଇ cost ରେ ଆମେ ତାକୁ record କରୁଛେ. Other measurement ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ କିଛି measurement ମଧ୍ୟ ଅଛି. For example, market price ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର asset କୁ record କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ market price ରେ personal judgment କାମ କରିବ. ହେଲା, market price differ करे market to market. गोटे मार्केट रे प्राइस अलग थिले आउ गोटे मार्केट प्राइस अलग थाए. सेति पई एटा ऑब्जेक्टिविटी को अटेन करि पारे नै. ऑब्जेक्टिविटी माने जोटी फ्री फ्रॉम पर्सनल जजमेंट. हैला, पर्सनल बिलीफ रु आउ एस्टिमेशन रु जोटा फ्री सेटा को हमें ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल कहथौ. आउ जदी हमें मार्केट प्राइस बेस रे मेजर करि कि रेकॉर्ड करिबा एसेट को, सेटा ऑब्जेक्टिविटी को अटेन करिवो नै. The current cost of an asset is not easily determinable. तो current cost टा easily determinate करि होबो नै, कारण current cost टा different market रे vary करिवो and different person को person मध्य current cost vary करिवो, situation to situation मध्य vary करिवो. If the asset is purchased on 1/1/1995 and such model is not available in the market, से कहूँ जे गोटे एग्जांपल दउची, जदि गोटे एसेट 1995 मसिया रे किना आइची, एबे से मॉडल टा मार्केट रे अवेलेबल नाही, ताले आमे केमती तारो मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करियो. सो इट बिकम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन which model is appropriate and equivalent to existing one. Okay. Similarly, unless the machine is actually sold, realizable value will give only a hypothetical figure. Lastly, present value base is highly subjective because to know the value of an asset, one has to chase the uncertain future. ताहले cost concept कहूचे हमें सब बेले हमर asset को में historical cost रे record करिया. historical cost माने invoice value or acquisition cost or purchase cost. अन्य measurement अछि, किंतु सेटा cost concept भली perfect होबनी, neutral होबनी आउ objectivity को attain करिबनी. कोन पई जदि हम market price base रे record करिबा ताले market price
कन्स्टाट न थाए सब मार्केट रे रेट टा डिफरेंट थाए तो आमे कोटा फिक्स करबा सेटा आमे कंफ्यूज रे पड़ी जिबा आ गोटे बिजनेस टू बिजनेस एटा भ्यारी करे सपोज टाटा रे स्टील रो प्राइस जति थिबो रिलायंस रे स्टील रो प्राइस ताटू भ्यारी थिबो तो एमती भी मार्केट प्राइस रे बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन बिजनेस हाउसेस टू बिजनेस हाउस भ्यारी करि थाए सेमती आउ गोटे हमर अछि बेस कोन प्रेजेंट वैल्यू मेथड तमे माने पढिथिबो मैथमेटिक्स रे प्रेजेंट वैल्यू माने सपोज 2015 रे हम गोटे जिनस किणुचे हैला तार वैल्यू टा 2020 रे केते हबो 2020 रे तार वैल्यू टा केते हबो हमें किछि मैथमेटिकल फार्मूला पकई तार वैल्यू टा बाहर करू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2020 ओके तो प्रेजेंट वैल्यू टा को हमें कोन करू किछि फ्यूचर अनसर्टेन फ्यूचर को मैथमेटिकल फार्मूला द्वारा एस्टिमेट करू आ डिटरमाइन करू अगेन एटा परफेक्ट हुए नै गोटे एस्टिमेशन ही हेते तो एटा भी हमर ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को अटेन करि पारे नै सेति पई हमर अकाउंटिंग रे कॉस्ट कांसेप्ट फॉलो करा जाय कॉस्ट कांसेप्ट माने जो रेट रे एसेट किना है सेई रेट रे ही मेंशन करा जाय आउ को कॉस्ट को कंसीडर करा जाय ताले कॉस्ट कांसेप्ट रो किछि डिमेरिट अछि किंतु से डिमेरिट सत्वे भी हमें कॉस्ट कांसेप्ट नै थाउ कारण हमें ऑब्जेक्टिविटी को अटेन करि थाउ हमें जदी अदर मेजर नबा ताले सेठी पर्सनल जजमेंट काम करिवो आ पर्सनल जजमेंट जोटी काम करिवे सेठी हमर फाइनेंशियल रिपोर्ट को केही बिलीव करि परिबे नै कारण सेठी पर्सनल जजमेंट काम करछि हमें मार्केट प्राइस करेंट मार्केट प्राइस नउचे सेटा पर्सन टू पर्सन वैरी करिवो आउ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मार्केट टू मार्केट वैरी करिवो सेति पई सेटा हमर कोन यूजर्स मानक पई कि सेटा इजीली से माने एक्सेप्ट करि परिबे नाही सेति पई हमको ओरिजिनल कॉस्ट फॉलो करिबो पड़िबो और हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करिबो पड़िबो ओके तो कॉस्ट कांसेप्ट गला एबे आसबे नेक्स्ट कांसेप्ट को रियलाइजेशन कांसेप्ट so what is realization concept realization concept closely follow the cost concept ताले realization concept cost concept को closely follow करछि any change in value of an asset is to be recorded only when the business is realizes it ताले हमें cost concept रे काम करले सब जक asset को हमें historical cost रे और purchase cost रे acquisition cost रे record करछु ताले एठी कहूची any changes in value of an asset is to be recorded only when the business realizes it business जतले realize करिवो actually सेतबेले से चेंजेस टा रेकॉर्ड करिवो नहले रेकॉर्ड करिवो नाही फॉर एग्जांपल जदी गुटे हमर एसेट अछि 10 लाख टंकार ताकू हमें बिक्की दउचे ताहले सपोज 10 लाख टंकार एसेट 12 लाख टंकार बिक्री हे गेला ताहले सेटा 12 लाख टंकार ही शो करा दिबो ओके कारण एटा रियलाइज हे गेला माने एटा बिक्री हे गेला आ कैश को कन्वर्ट हे गेला सेतबेले नै हमें रियलाइजेशन वैल्यू टा को रेकॉर्ड करिवो when an asset is recorded at its historical cost and even its current cost is 15 lakh suppose गोटे एसेट 5 लाख टंका रे रेकॉर्ड हेची तार करेंट कॉस्ट 15 लाख टंका हेले भी हमें ताको से 5 लाख रे देखिबा जे पर्यंत सेटा रियलाइज हे नै आउ मटेरियलाइज हे नै such change is not counted unless there is certainty that such change will materialize okay however accountant follow a more conservative path ताले अकाउंटेंट माने गोटे कंजर्वेटिव पैथ फॉलो करंती कोन करंती they try to cover all probable losses but do not count any probable gain asset रे केते लॉस होउची से माने ताकू कवर करिया चाहंती ताकू रेकॉर्ड करिया चाहंती किंतु एसेट जदी गेन होउची से माने अवॉइड करंती that is to say if accountant anticipate decrease in value they count it but if there is increase in value they ignore it until it realized okay ताहले अकाउंटेंट माने प्रैक्टिस रे कोन करंती जदी किछि वैल्यू एसेट रो वैल्यू डिक्रीज होउची से माने ताको रेकॉर्ड करि थांती
ଆଉ ଯଦି ଆସେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିନଥାନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁ କାରଣ ଆସେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ କି, ଆସେଟ୍ର ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ମାଇନସ୍ କରିକି ତାକୁ ଡିକ୍ରିଜିଂ ରେଟ୍ରେ ଦେଖାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥାଉ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସକୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମାନେ ହାଇଲି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସକୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମାନେ ହାଇଲି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ୍ କରିଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟିଂକୁ ମିନିଂଲେସ୍ କରିଥାଏ। କେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି? ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମାନେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପସିବୁଲ୍ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେବା ତାହେଲେ ସେ ପର୍ସନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ସେଠି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ରିୟଲାଇଜେସନ୍ କନସେପ୍ଟ। ରିୟଲାଇଜେସନ୍ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି କେତେବେଳେ ଆମେ ଆସେଟ୍କୁ ସୋଲ୍ଡ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବା। ଯଦି ଏଇଟା ସର୍ଟନ୍ କି ଆମେ ବିଜନେସକୁ ସୋଲ୍ଡ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ ସେଲ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ହୁଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସେଟ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଓକେ, ବିଜନେସ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ହବ ପୂର୍ବରୁ ଆସେଟ୍ ସବୁକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇକି ତାର ଲାଇବିଲିଟି ସବୁକୁ ସୁଝାଯାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଇବିଲିଟି ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଆସେଟ୍, କରେଣ୍ଟ ଲାଇବିଲିଟିକୁ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ସପୋଜ କ୍ରେଡିଟରଙ୍କ ଲାଇବିଲିଟି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଇବିଲିଟିକୁ ଦିଆଯାଏ। କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆସେଟ୍ ବିକିକି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲାଇବିଲିଟି ହୋଲ୍ଡର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା ବେଳେ ଓନରକୁ ଦିଆଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ହବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସର୍ଟନ୍। ଆମେ ସର୍ଟନ୍ ଯେ ଆମେ ସିଓର ଯେ ବିଜନେସ୍ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଅପ୍ ହବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମ ବୁକ୍ରେ ଅଛି 5 ଲକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି 15 ଲକ୍ଷ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ରିୟଲାଇଜେସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ରିୟଲାଇଜେସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୁଏ ହେଲା, ସେ ରିୟଲାଇଜେସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏ 5 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟାଲୁକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ, ତାପରେ ସେଲ୍ ହୁଏ, ତାପରେ କ୍ୟାସ୍କୁ କନଭର୍ଟ ହୁଏ, ତାପରେ କ୍ୟାସ୍ ଆମର ଲାଇବିଲିଟି ଯାହାର ଯାହାର ଥିବେ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟନ୍ ଆମେ ସେତେବେଳେ ରିୟଲାଇଜ୍ ଭ୍ୟାଲୁରେ ରେକର୍ଡ କରିବା, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା। ଓକେ, ତ ରିୟଲାଇଜେସନ୍ କନସେପ୍ଟ ଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ଆସିବ ଆକ୍ରୁଆଲ କନସେପ୍ଟ। ଆକ୍ରୁଆଲ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ଆକୁ ନିହାତି ଭାବେ ବୁଝିବା ଦରକାର, କାରଣ ସବୁ ବିଜନେସ ଆକ୍ରୁଆଲ କନସେପ୍ଟ ହିଁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ସମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦେ ଆର୍ ଫଲୋଇଂ କ୍ୟାଶ କନସେପ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆକ୍ରୁଆଲ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଅକର ହେଉଛି ଅର ହାପେନ୍ ହେଉଛି, ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ରେକଗ୍ନାଇଜଡ କରିବା, ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ବହି, ମାନେ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅକର ହେଉଛି, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମିନ୍ସ ପରଚେଜ ଗୁଡ୍ସ ଓର୍ଥ ₹20,000। ଓକେ, ଆମେ ପରଚେଜ କଲେ 20,000ର ଗୁଡ୍ସ କିନ୍ତୁ ପେ କଲେ 10,000। ଓକେ, ଆମେ କ୍ୟାଶ ପେ କଲେ 10,000 କିନ୍ତୁ ପରଚେଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅକର ହେଇଗଲା, ଆଉ ପରଚେଜ କରିଦେଲେ ଆମେ 20,000ର ଜିନିଷ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। 20,000ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାନେ ପରଚେଜ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଇନିସିଏଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ କ୍ୟାଶ କିନ୍ତୁ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ, ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଦବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ପରଚେଜ ରେକର୍ଡ କରିବା? 20,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ରେକର୍ଡ କରିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ରୁଆଲ କନସେପ୍ଟ। ଓକେ, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅକର ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଇଟା ରେକର୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୟାଶ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୟାଶ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲ ରିସିଭ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହିଁ ରେକର୍ଡ ହବ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ। କ'ଣ କହୁଛି? ଅଣ୍ଡର ଆକ୍ରୁଆଲ କନସେପ୍ଟ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇଭେଣ୍ଟ ଆର୍ ରେକଗ୍ନାଇଜଡ ଅନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବେସିସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ when they occur and not as cash or a cash equivalent is received or paid। କ୍ୟାଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଆ ହେଇଛି କି ନ ଦିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅକର ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁକରେ ରେକର୍ଡ କରିବା। ଆଣ୍ଡ they are recorded in the accounting records and reported in the financial statement of the period। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ପିରିୟଡ଼ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ନେବା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଫିକ୍ସ କରିବା,
सेई पीरियड रे जहाँ जहाँ परचेज ହେଇଛି जहाँ जहाँ सेल ହେଇଛି जहाँ जहाँ प्रॉफिट ହେଇଛି जहाँ जहाँ लॉस ହେଇଛି सेई पीरियड ପାଇଁ ଆମେ ताकू रेकॉर्ड करिबा ओके एक्चुअल कैश केते दिया ହେଇଛି एक्चुअल कैश केते रिसीव्ड ହେଇଛି ताकू आमे आखिरे रखी रेकॉर्ड करियोने आमे होल ट्रांजैक्शन को गोटे पर्टिकुलर पीरियड ପାଇଁ आमे रेकॉर्ड कले जाई फाइनेंशियल रिजल्ट पाइ ओके financial statements prepared on the accrual basis inform users not only of past event involving the payment and receipt of cash but also of obligation to pay cash in future and of resources that present cash to be received in the future ताले accrual concept खाली past transaction को record करने future रे केते लाइबिलिटी अच्छी आ केते एसेट एक्रू होची ताकू मध्य रेकॉर्ड करिबा हमें एक्रुअल कांसेप्ट अंडर टू अंडरस्टैंड एक्रुअल अजम्पशन नॉलेज ऑफ रेवेन्यू एंड नॉलेज ऑफ एक्सपेंसेस इज रिक्वायर्ड ताले एक्रुअल कांसेप्ट को बुझिबा को हेले हमको रेवेन्यू कोन आ एक्सपेंसेस कोन हमको बुझिबा को पड़िबो ताले रेवेन्यू कोन हम गोटे एग्जांपल लेबे बुझिबा रेवेन्यू कोन suppose X started a cloth merchandise he invested 50,000 bought merchandise for 50,000 से 50,000 टका इन्वेस्ट कला आ 50,000 रो किछि मर्चेंडाइज और गुड्स से किनिला आ से ही सोल्ड सच मर्चेंडाइज 60,000 50,000 रो मर्चेंडाइज किनिला आ 60,000 टका रे बिकिला ताको एक्चुअल जो कस्टमर को बिकिला से कस्टमर ताको पेड करछि 50,000 ताले 60,000 टका गुड्स बिका है 50,000 टका कैश रिसीव्ड है ताले एटी रेवेन्यू केते रेवेन्यू केते रेवेन्यू केते हबो रेवेन्यू हबो 60,000 कारण 10,000 टा हमर पे रिसीवेबल ओके 10,000 टा कोन रिसीवेबल कारण पछरे मिली 50,000 होची एक्चुअल रिसीव्ड 10,000 होची रिसीवेबल कारण आ 15-20 दिन पर सेटा हमको मिली ए रिसीव्ड आ रिसीवेबल को मिसै देले 50 + 10 = 60,000 कोन हे जबो हमर टोटल रेवेन्यू हे जबो हिज रेवेन्यू इज 60,000 it arose in the ordinary course of cloth business Mr. X received 50,000 in cash and 10,000 by way of receivable or credit ओके ताले 50,000 जिनस जदि 60,000 टका बिक्री होची 60,000 टका हमर रिसीव होची तो सेटा होची रेवेन्यू आउ कैश केते रिसीव हैला कैश केते रिसीवेबल सेटा मिसै देले भी हमर रिसीवेबल बाहरी जे ताले रेवेन्यू कोन रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश receivables gross inflow of cash receivables and other considerations arising in the course of ordinary activities of an enterprise okay from sale of goods from rendering of service and from use of other of enterprises resources yielding interest royalty dividends okay ताले revenue कोन revenue होची हमरो सेल्स रु जहा मिलिबो ओके हमें सर्विस किछि प्रोवाइडर करले जहा मिलिबो प्लस हमें किछि एसेट को जदी रेंट रे दउचे से रेंट रु जहा हमको मिलुची रॉयल्टी इंटरेस्ट आ डिविडेंड जहा भी मिलुची सेथुरु से सब को मिसै देले हमरो रेवेन्यू हे जे ओके तापर एक्सपेंसेस कोन होतो expenses is a cost relating to the operations of an accounting period or to the revenue earned during the period or the benefit of which do not extend beyond that period ताले expenses माने कोन होची expenses is a cost relating to operation of an accounting period or to the revenue earned during the period ताले expenses कोन हमें ऑपरेट करिया को बिजनेस ऑपरेट करिया को जहा सब खर्च करछे ताको हमें एक्सपेंसेस कहउचे आउ सेटा हमें गोटे पीरियड जाहि
କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ଓକେ, ସପୋଜ ଆମେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ, ସାଲାରୀ ଆମେ ଦଉଛେ, ଆମର ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଦଉଛେ, ଏସବୁ ଦଉଛେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ହଉଛି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବିଜନେସ୍ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ନିହାତି ଦରକାର ବିଜନେସ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ଟା କୋଉ ଯାଏଁ ହିସାବ କରିବା, ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ହିଁ ହିସାବ କରିବା। ସପୋଜ ବର୍ଷକ ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହେଲା, ବର୍ଷକ ପାଇଁ ରେଣ୍ଟ କେତେ ଦିଆହେଲା, ବର୍ଷକ ପାଇଁ ସାଲାରୀ କେତେ ଦିଆହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଟୋଟାଲଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ କହିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏଠି ନେଇଛି, in the first example Mr. X spent 50,000 to buy a merchandise। जो एग्जाम्पल आम नहीं से एक्स कौन करता 50,000 टका खर्च करता किसी गुड्स किणवा। इट इज द एक्सपेंसेस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू ऑफ 60,000। ताले जो 60,000 टका तार सेल करता जोटा आम रेवेन्यू कहूँ से 50,000 टकार जिनस से खर्च करता, 50,000 टका हूँ एक्सपेंसेस। ताले से कौन हो, इन द सेकेंड इंस्टांस सेकेंड केस कौन हो, 16 lakhs are the expenses। सेकेंड एग्जांपल ले 16 लाख थिला एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल कौन थिला, सेकेंड एग्जांपल रे एठी कौन हेतला, गोटे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी 16 लाख तार एसेट रे इन्वेस्टमेंट करथिला और तार टोटल बिल कलेक्शन हेतला 20 लाख। ताले एठी एक्सपेंसेस 16 लाख हेतला और रेवेन्यू हेतला 20 लाख। सेटा कहू सेकेंड एग्जांपल ले तार 16 लाख को आमे एक्सपेंसेस रे नेथिले। ताहले रेवेन्यू रु एक्सपेंसेस को माइनस कर देले हमर प्रॉफिट बाहर। मोर फर्स्ट एग्जांपल ले रेवेन्यू हेतला 60,000 टका, एक्सपेंसेस हेतला 50,000, ताहले रेवेन्यू रु एक्सपेंसेस माइनस कर देले प्रॉफिट बाहर 10,000 टका। एमदी ही हमर अकाउंटिंग रे प्रॉफिट को कैलकुलेशन करा जाए एक्चुअल बेसिस रे। ताहले एक्चुअल बेसिस रे हमें कोन ध्यान देबा रिकॉर्डिंग करा। एक्चुअल कांसेप्ट रे हमें कोन करू, हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस कोन देखू, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कोन देखू, नहीं कि ये सब को देखू। ताले ये सब केस रे ही हमें ऑब्जर्व करी रिकॉर्ड करू। व्हेन कैश रिसीव्ड बिफोर रेवेन्यू इज बुक्ड, सपोज हमें आगो कैश रिसीव करूछु रेवेन्यू ओकर होबा पूर्वरु, ताले कोन होबा, सपोज हमें एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर बिफोर सेलिंग, बिफोर सेल करिया पूर्व हमको कस्टमर किसी एडवांस देले, ताले से जो एडवांस अमाउंट मिलला ताको गोटे लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट करके हमको बैलेंस शीट रे देखिया पड़ियो, कारण ए पर्यंत सेल है। ये लायबिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, सेकंड केस रे कोन हो, व्हेन कैश रिसीव्ड आफ्टर रेवेन्यू इज बुक्ड। ए पर्यंत रेवेन्यू आसीनी, कलेक्शन हेनी, किंतु कैश रिसीव्ड हे गने। सपोज पर्यंत कौन है, an asset called trade receivable is created। से माने कौन कहूँ, after revenue is booked, after revenue is booked माने हमर सेल ऑलरेडी हे जाय। ओके, सेल होची हमर रेवेन्यू, रेवेन्यू बुक हेची माने सेल ट्रांजैक्शन गुडाक रेकॉर्ड हे जाय, किंतु सेल गुडाक क्रेडिट रे हेची। ओके, सेल गुडाक क्रेडिट रे हेची, ताले कैश रिसीव केते बळ सेल परे ही कैश रिसीव्ड हबो। से गुडा को आमे कोन को डेप्टर कहता से कहछि, एन एसेट कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल इज क्रिएटेड, जोटा को आमे डेप्टर कहि कि ताको बैलेंस शीट रे शो करथाउ, सेटा को आमे एसेट नेथाउ। तापर 3 नंबर कोन करथाउ, व्हेन कैश पेड बिफोर एक्सपेंसेस इज बुक्ड। सपोज एक्सपेंसेस आमे रिसीव्ड करिने, एक्सपेंसेस रो बेनिफिट आमे नेइने, किंतु कैश पेमेंट कर देछि, माने एडवांस पेमेंट कर देछि, किंतु एक्सपेंसेस जोटा को आमे से बेनिफिट ए पर्यंत रिसीव करिने, कैश तो आगो कर देछि, आकु आमे कोन प्रीपेड एक्सपेंसेस कहथाउ। ताले प्रीपेड एक्सपेंसेस कोन, गोटे एसेट, क्रिएट एन एसेट कॉल्ड ट्रेड एडवांस व्हेन कैश इज पेड इन एडवांस। सेही बडी व्हेन कैश पेड आफ्टर एक्सपेंसेस इज बुक्ड, कैश पेड आफ्टर एक्सपेंसेस इज बुक्ड। सपोज सैलरी एम्प्लॉय माने काम करछन्ती, किंतु आमे सैलरी ए पर्यंत देइना, सपोज 12 मास
सैलरी ड्यू हो जाए किंतु एक्चुअल पेमेंट होइए 8 मासर ताले आउ 4 मासर लायबिलिटी होइला एम्प्लॉय मानक प्रति बिजनेस रो ताले गोटे लायबिलिटी अकाउंट खोला हो ताको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और ट्रेड पेबल ओके एटा को पेबल्स हुआ जाए ताले एक्सपेंसेस को केमती रेकॉर्ड करा जाए आउ रेवेन्यू को केमती रेकॉर्ड करा जाए तार प्रोसेस टा टोटल सिस्टम ताको टोटल बेसिस को हमें एक्चुअल बेसिस मध्ये कहि थाउ ए चारटा जिंस को ध्यान देकी अकाउंटिंग मेंटेन करा जाय था तापर होची पीरियड कांसेप्ट हमें आगुरु पढ़ी गोइंग कंसर्न कांसेप्ट बिजनेस इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ताले बिजनेस होची गोटे प्रोसेस जोटा नेवर एंडिंग रे एमती रन करी करी चले ताहले जदि बिजनेस होची नेवर एंडिंग प्रोसेस थरे स्टार्ट हैला माने केतेबेले बंद होबा हमें कहि परिया नै ताले हमें परफॉर्मेंस मेजर करी करिया परफॉर्मेंस मेजर माने हमर बिजनेस प्रॉफिट रे चली कि लॉस रे चली एटा जानिया पई जोटा सिस्टम टाको हमको परफॉर्मेंस मेजर करिया हैला ताले प्रॉफिट केमती कैलकुलेशन करिया ताले टोटल जो लाइफ टाइम टाको हमें पार्ट पार्ट रे डिवाइड करिवा हैला गोटे पीरियड हमको बने पड़ो नॉर्मली हमर गोटे 1 ईयर 12 मंथ रो गोटे पीरियड थाए जोटा को हमें फाइनेंशियल ईयर कहि था ताले हमको टोटल लाइफ साइकिल को डिवाइड करिया पड़ो आ ताको हमें पीरियड कहबा ए हिसाब रे हमें एक्सपेंसेस आउ रेवेन्यू को बुक करिवा एसेट को रिकॉर्ड करिवा आउ सब करिवा पीरियड कांसेप्ट नथिले हमें एक्चुअल कांसेप्ट भी फॉलो करि परिबा नै आउ कॉस्ट कांसेप्ट भी फॉलो करि परिबा नै ओके ताले पीरियड कांसेप्ट कोन कहै this is also called concept of definite accounting period definite means defined accounting period as per going concern concept an indefinite life of entity is assumed going concern concept रे हमें life टा indefinitely assume करू for a business entity it causes inconvenience to measure performance achieved by the entity in the ordinary course of business. For example, if a textile mills last for 100 years, it is not desirable to measure its performance as well as financial position only at the end of its life. ताले जदि गोटे टेक्सटाइल मिल रन करछे से होची 100 वर्ष तार कंटिन्यू हबो किंतु हमें केतेबेले तार परफॉर्मेंस मेजर केतेबेले करिबा जदि गोइंग कंसर्न फॉलो करिया ताले 100 वर्ष परे करिबा नहीं ताले 100 वर्ष परे जदि करिबा ताले हमें केमि जानिबा हम बिजनेस टा प्रॉफिट रे चलिला कि लॉस रे चलिला तो जानिबा सहज हबो नै जदि भी लॉस रे चलि ताम केमि रेक्टिफाई करिया प्रॉफिट को केमि कन्वर्ट करिबा ताले परफॉर्मेंस जदि मेजर न हबो ताले हमें हम बिजनेस रो जो साइकिल को हमें ठीक वे रे नै परिबा नै आ एटा लीड हे जबो वाइंडिंग अप से हमको पीरियड कांसेप्ट फॉलो करिया पड़ो गोटे डिफाइन पीरियड सेट करिया पड़ो सेही पीरियड रे केते एक्सपेंसेस हला केते रेवेन्यू हला आकु सब रिकॉर्ड करके हमें प्रॉफिट मेजर कले जाइए हमें परफॉर्मेंस जानी पारिबा एटा होची पीरियड कांसेप्ट तो पीरियड किछि भी हे पारे 12 मंथ हे पारे 6 मंथ हे पारे 9 मंथ हे पारे 15 मंथ हे पारे 15 डे मध्ये गोटे पीरियड भी हे पारे जनरली हमर 1st एप्रिल टू 31st मार्च of the immediate following year को हमें नहीं था जोड़ा को हमें फाइनेंशियल ईयर कहते ताले पीरियडिसिटी कांसेप्ट फॉलो कले कोन हुए कंपेरेबिलिटी पई सहज हुए ताले कंपेयर हमें करि परिबा पीरियड कांसेप्ट नेले आउ कोन यूनिफॉर्म हबो अकाउंटिंग रिकॉर्ड यूनिफॉर्म हबो आउ कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ascertaining the profit and asset of the business मैचिंग जो कांसेप्ट हमर अछि हमें रेवेन्यू रे एक्सपेंसेस को मैच करूचे सेटा भी पॉसिबल हे पारे जदि पीरियड कांसेप्ट न होबा ताले हमें रेवेन्यू आउ एक्सपेंसेस को मैचिंग करि परिबा नै परफॉर्मेंस मेजर करि परिबा नाही ताले नेक्स्ट देखिबा हमें कंसिस्टेंसी कांसेप्ट मान कहूची कंसिस्टेंट को है कांस्टेंट रो कंसिस्टेंट है छी ताले कंसिस्टेंट कांसेप्ट कहूची जदि हमें ए फाइनेंशियल ईयर रे सपोज 21-22 रे हमें कैश कांसेप्ट फॉलो करछे ताले 22-23 रे कैश कांसेप्ट फॉलो करिया 23-24 रे कैश कांसेप्ट फॉलो करिया 24-25 रे मध्य कैश कांसेप्ट करिया
जदि आम एठी कैश आउ एठी एक्चुअल कॉन्सेप्ट फॉलो करछे ताहले कोन हबो हमें कंपेयर करि परिबो नै कारण कैश कॉन्सेप्ट रे प्रॉफिट अलग आसीबो एक्चुअल कॉन्सेप्ट रे प्रॉफिट अलग आसीबो तो कंपैरिजन हे परिबो नै कंपैरिजन जदि हे परिबो नै ताहले यूजर्स ऑफ अकाउंट्स जो माने यूजर रहले जो माने स्टेक होल्डर रहले से तांकर डिसीजन मेकिंग करि परिबे नै तो अकाउंटिंग प्रोसेस मीनिंगलेस हे तेनु करी कंसिस्टेंसी हमर रहिबा दरकार सब जाक अकाउंटिंग पॉलिसी रे सपोज हमर डेप्रिसिएशन रे हम जदि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड नउचे ताले सब ईयर रे हम डिमिनिशिंग मेथड बैलेंस मेथड नेले जाय कि हम ताको कंपेयर करि परिबा आ एटा यूनिफॉर्म हे परिबा ओके ताले कंसिस्टेंसी in order to achieve comparability of the financial statement of an enterprise. So, time the accounting policy are followed consistently. From one period to another, a change in accounting policy is made only in certain exceptional circumstances. ताले हम consistent comparability करिया पे हमको consistent concept follow करिया पड़िबो किंतु किछिटा exceptional case अछि जोठी हमें consistency follow करिबा नै कोन exceptional case अच्छी exceptional case A रे कोन अछि to bring the book of account in accordance with the issued accounting standard जदि हम accounting standard required करूची जे accounting standard किछि डिमांड करूची ताले हमें मेथड को चेंज करिबा सपोज accounting standard कहूची तमे written down value मेथड फॉलो कर किंतु आम बिजनेस आज जाय स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करूची तो हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमर स्टेटमेंट तैयार करिया पड़ियो सेतो बेले हमें चेंज करि परिबा सेकंड सिचुएशन होची टू कंप्ले विथ द प्रोविजन ऑफ लॉ जदि लॉ रे किछि चेंजेस हे गेला ताले हमको अकाउंटिंग पॉलिसी गुडा को चेंज करिया पड़ियो हम कंसिस्टेंसी सेठी फॉलो करि परिबा नाही आ गुडे दोची when under changed circumstances किछि circumstances चेंज हैला किछि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हैला it is felt that new method will reflect more true and fair picture of the financial statement जदि किछि सिचुएशन सेमती चेंज हैला जोठी आमे जदि आम मेथड को चेंज करिवा हमरो स्टेटमेंट अधिका ट्रू एंड फेयर देखिबो ताले से सिचुएशन में हमें चेंज करिवा किंतु गोटे डिस्क्लोजर देकी ही चेंज करिवा ओके डिस्क्लोजर माने हम नोट्स टू अकाउंट मेंशन करिवा कोन पई हम चेंज कले आ चेंज करिवा द्वारा हमरो कोन बेनिफिट हैला तापर हम देखिबा कंजर्वेटिज्म कांसेप्ट ताले कंजर्वेटिज्म कांसेप्ट माने होची we should behave conservative while preparing our books of account okay so conservatism states that the accountant should not anticipate any future income however they should provide for all possible losses conservatism concept होची हमें फ्यूचर इनकम टाको एंटिसिपेट करबा किछि दरकार नै किंतु फ्यूचर जो पॉसिबल लॉसेस अछि ताको एंटिसिपेट करिया निहाती दरकार नहले बिजनेस प्रॉब्लम रे पड़ि when there are many alternative आ गोटे कथा होची जोठी एक रु अधिक अल्टरनेटिव अछि valuation of asset an accountant should choose the method which leads to lesser value suppose आमु गोटे asset को value करियाबो valuation करियाबो पड़ुची हैला जदि valuation करियाबो पड़ुची जो asset टा lesser value दोथो सेही उटाको हमें करिवा सेटाको conservatism concept कुआ later on we shall see that the golden rule of current asset valuation ताले गोटे asset रो example होची current asset जति सो current asset अछि ताको केमते valuation करा जाय cost or market price whichever is lower ताको के कहछि ताको conservatism concept कहछि जदि हमें asset को valuation करियो निहाती दरकार ताले से जदि सेठी valuation रो जो मेथड एक रु अधिक अछि ताले से जे मेथड रो लोअर वैल्यू को हम कंसीडर करिया जेमति क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रे हमें कॉस्ट जानि थाउ ओके कॉस्ट जानि थाउ से क्लोजिंग स्टॉक रो कॉस्ट केते आउ तार मार्केट वैल्यू मध्ये जानि थाउ ताले कॉस्ट वैल्यू केते मार्केट वैल्यू केते तार लोअर टा हमें देखि थाउ काहे कि लोअर टा देखिले कोन हबो हमरो कोन हबो प्रॉफिट कमी जिवो ओके जदि प्रॉफिट कमी जिवो ताहले हमकु इनकम टैक्स कम दबाकू
पड़िबो एटा सब आडू ही बेनिफिट हो सेति आम केयरफुली कंजर्वेटिवली आम एगुड़ा सब वैल्यूएशन करूँ एटा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहा जाइए ताले for this concept there should be at least 3 qualitative characteristics of financial statement namely prudence ताले कंजर्वेटिज्म फॉलो करिया ये तीनटा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करिया पड़िबो 3 नंबर होची फेथफुल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यू फेथफुल माने भरोसा योग्य आमे जो वैल्यू टा को करिबा जो अल्टरनेटिव वैल्यू मार्केट वैल्यू टा जेमती भरोसा योग्य हेतिबो तापर न्यूट्रलिटी मींस सेठी ऑन बेस्ड माने पर्सनल वैल्यू किसी रहिबने पर्सनल जजमेंट रहिबने आउ अनसर्टन गेन किसी नथिबो माने किसी पर्सनल जजमेंट सेठी रहिबो नाही न्यूट्रलिटी को हमको फॉलो करिया पड़िबो जोटा ठीक सेटा ही फॉलो करिया पड़िबो प्रुडेंस माने होची एस्टिमेशन प्रुडेंस माने होची एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी जोटा सर्टन जोटा पॉसिबल से हिसाब रे ही हमको एस्टिमेशन टा नबाकू पड़िबो कारण judgment about the possible future losses which are to be guarded as well as gain which are short term okay ले ए तीनटा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दरकार कंजर्वेटिज्म कांसेप्ट फॉलो कला बेले फॉर एग्जांपल जते बेले हमें वैल्यूएशन करूचे कोन हम जते वैल्यूएशन करूचे क्लोजिंग स्टॉक गोटे होची करंट एसेट ताको जते वैल्यूएशन करूचे कॉस्ट टाको हमें ठीक फिगर पकेबा हैला कॉस्ट टाको ठीक फिगर पकेबा कारण कॉस्ट कैलकुलेशन है तो मार्केट प्राइस गोटे अल्टरनेटिव वैल्यूएशन ताको हमें भी फेथफुल हवा दरकार मार्केट प्राइस टा जोटा ठीक थिबो सेही मार्केट प्राइस नु पकेबा कारण मार्केट प्राइस डिफर हेता जोटा ठीक सेटा को नबा तापरे मार्केट प्राइस टाको हमको एस्टिमेट करियो पड़ियो मार्केट प्राइस को हमको एस्टिमेट करियो तो ताको सर्टेनिटी जोटा पॉसिबल से टाइप रो एस्टिमेट करियो पड़ियो तापरे हमें न्यूट्रलिटी देखिबा जतोले हमें कॉस्ट को रिकॉर्ड करिबा न्यूट्रलिटी हमें प्रिंसिपल को फॉलो करिबा जतोले हमें ए एसेट को वैल्यू करिबा एज पर कंजर्वेटिज्म कांसेप्ट तापर होची मेटेरियलिटी मेटेरियल मींस एठी मेटेरियल माने किछि द्रव्य नहे किछि मेटेरियल आम जोटा कहूचे एठी मेटेरियल माने होची इंपोर्टेंट ओके जोटा इंपोर्टेंट जिनस सेटा को हमें शो करिबा जोटा इंपोर्टेंट नहे ताको हमें इग्नोर करिबा ताले मेटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स अदर कांसेप्ट टू बी इग्नोर्ड अदर कांसेप्ट को इग्नोर करि हबो मेटेरियलिटी कांसेप्ट रे केमती इफ द एसेट इज नॉट कंसीडर्ड मेटेरियल हैला जदि एसेट टा मेटेरियल नहो ताले हमको ताको कोन अवॉइड करि परिबा एठी इग्नोर करि परिबा सपोज गोटे एसेट रो वैल्यू होची 10 टका हैला सपोज गोटे एसेट रो वैल्यू होची 10 टका ताले तार डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करिबा किछि दरकार नै ताको डायरेक्ट हमें एक्सपेंसेस रे शो करि पारे कारण 10 टकाटा मेटेरियल नहो जदि गोटे बड़ बिजनेस तार टर्नओवर होची 50 करोड़ ताले 10 टकाटा से बिजनेस आगे मेटेरियल नुह माने इंपोर्टेंट नुह आम से 10 टका आज ए एसेट शो कर सपोज गोटे बुक्स किना 10 रुपीज बुक्स गोटे एसेट किंतु जेहेतु यहाँ मेटेरियल नुह आपको आम एसेट शो करें नहीं कि 10 टकर डेप्रिसिएशन किसी कैलकुलेशन करके आमर बैलेंस शीट को लेंदी करवा किसी दरकार नहीं सेमती बुक थी पेन थी किसी टूल्स थी सेमती छोट मोट जिनस बहुत थी जो गुड़ाक गोटे वर्ष रु अधिक बेनिफिट देथिबो ताले जो जिनस गुड़ाक सब गोटे वर्ष रु अधिक बेनिफिट दउथिबो ताकू हम एसेट को होय आउ ताकू हम बैलेंस शीट रे शो करे किंतु जो एसेट बहुत कम दाम जोटा मटेरियल नुह जोटा इंपोर्टेंट नुह ताकू हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखे परिबा किंतु सेगुड़ा वर्ष रु अधिक हमको बेनिफिट दबो किंतु ताकू एक्सपेंसेस देखिया कारण मेटेरियलिटी कांसेप्ट को हमें फॉलो करूचे सेगुड़ा मेटेरियल नुह सेगुड़ा इंपोर्टेंट नुह 10 टका 100 टका 500 टका एगुड़ा सब जदि मेटेरियल नुह बिजनेस पई ताले हमें आपको इग्नोर करि परिया आज एक्सपेंसेस देखै परिबा एसेट देखिया किछि दरकार नाही ताले दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ताले एठी फुल डिस्क्लोजर जो प्रिंसिपल अछि एटा तार एक्सेप्शन according to materiality principle all the item having significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statement and any insignificant
item which will only increase the work of the accountant but will not be relevant to the user need should not be disclosed in the financial accounting. तारे से कहूँ जोड़ा इनसिग्निफिकेंट किंतु नंबर रे अधिका अछि ताकू जदि आमे एसेट रे मेंटेन करिवा ताले अकाउंटेंट ऊपर बहुत बर्डन हे जिवो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बहुत लेंदी हे जिवो सेति में आमे ताकू इग्नोर करी ताकू एक्सपेंसेस रे देखै कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे देखै कि ताकू सॉल्व करि पारि the materiality the term materiality is the subjective term ताले materiality होच गोटे subjective term objective no it is on the judgment common sense and discretions of the accountant that which item is material and which is not ताले को item टा material कोटा नुह ताले एटा होचे subjective means एठी पर्सनल जजमेंट अकाउंटेंट रो पर्सनल जजमेंट एठी काम करिवो सी डिसाइड करिवो कोटा आम मेटेरियल फॉर इम्पोर्टेंट आउ कोटा आम इम्पोर्टेंट नुह ताहले एठी किछि प्रिंसिपल नहीं डिसाइड करिया पई फिक्स प्रिंसिपल नहीं एटा बेस करिवो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज हबो अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट चेंज हबो कारण एठी अकाउंटेंट रो पर्सनल बिलीफ काम करिवो फॉर एग्जांपल स्टेशनरी परचेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन though not used fully in the accounting year purchase still shown an expenses suppose हमरो किछि चॉक आउ पेन किछि बुक्स जोड़ा स्टेशनरी गुडा को किना हैतला आउ तार सब जाक एक्सपेंसेस हेइन किछि चॉक रहि जाई आउ आमे ताकू एसेट देखि माने ताकू एक्सपेंसेस देखैबा टोटल कारण एटा कम अमाउंट आउ मटेरियल नोहे similarly depreciation on small item like book calculator is taken as 100% in the year of purchase though used by the entity for more than year suppose आमे गोटे कैलकुलेटर किनले गोटे बुक किनले जोटा वर्ष वर्ष धरि यूज करछे किंतु ताकू 100% डेप्रिसिएशन माने टोटल एक्सपेंसेस को टोटल कॉस्ट को आमे आज एक्सपेंसेस देखै दो ताकू एसेट देखै दरकार नै कारण आर वैल्यू बहुत कम थाए एडा इमटेरियल थिंग्स this is because the amount of books or calculator is very small to be shown in the balance sheet though it is the asset of the company so ये होची materiality concept ताले सब concept discussion है गला जदि किछि डाउट अछि ताले कमेंट सेक्शन में डाउट करि परिबो ओके ताले वीडियो को फुल देखिबे आउ लाइक एंड सब्सक्राइब मध्य करिकी बेल आइकन को प्रेस करले लेटेस्ट वीडियो सब अपडेट रे आसीबे